تو میں ایک وہ سنانا چاہ رہی تھی کہ میری ساس ایک دفعہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی نا، ٹھیک، اتنی زیادہ کہ ہم ان کو یعنی کہ بالکل نیم مردہ حالت میں ہم سمجھتے ہیں کہ لے کر گئے ہاسپٹل. ٹھیک، اور 3-4 ان کا چیک اپ ہوا، 3-4 مرتبہ ڈاکٹرز آئے تو کہتے ہیں بس یہ نہیں ہے اپنا. لیکن ایک دفعہ ایک ڈاکٹر آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر میری آپ بات سن رہی ہیں تو ہاتھ کھڑا کر دے. امی نے ہاتھ کھڑا کر دیا نا. اچھا، ماشاء اللہ. جی، اور اس کے بعد وہ 4 سال تک زندہ رہی ہیں. لیکن وہ میں کہتی ہوں وہ ایک عجیب سا وہ تھا نا کہ وہ اس طرح ایک معجزہ ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی دی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور تھینک یو سو مچ آپ کا اتنا پرسنل بات ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا، اپنا معجزہ شیئر کرنے کا، کیونکہ آپ کے لیے جو آپ کا معجزہ از بیکاز کہ اس سے بہت سارے لوگوں کو ریئلائزیشن ہوتی ہے. اور ہم واپس سے بات کنٹینیو کرتے ہیں کووں کو ہلانے کے بعد. میں حالانکہ ڈیلی ایکٹیویٹی لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، مگر میں جیسے اندر گیا ہوں تو مجھے ایک فیلنگ ہوئی کہ کچھ ہوا ہے. تو وہاں پہ ایک وہاں کی ایڈمنسٹریٹر ہوتی مسز ڈیسائی، میں اس کے پاس گیا، وہ وہی کھڑی تھی. میں نے کہا مسز ڈیسائی از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ مجھ سے کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا میں نے کوئی فیل کر رہا ہوں تو سم تھنگ از رانگ. اس نے کہا کہ اٹ از ویری اسٹرینج، فاؤنڈر ایکسپائرڈ. ان کو فاؤنڈر کہتے تھے. میں نے کہا ایکسپائرڈ کا تھا؟ یہ ایکسپائرڈ ٹوڈے ارلی مارننگ. میں نے کہا مجھے انہوں نے وہ باتیں بتانے کے لیے پاکستان سے بلایا. واپس گیا میں، انہونی بات نہیں ہے، اٹس اسٹرینج. وہ جو 2 گھنٹے انہوں نے، ورنہ میں واپس نہ آتا، میں سال میں 2 یا 3 دفعہ جاتا تھا کسی زمانے میں. مگر میں پاکستان گیا، 1 ہفتے کے اندر میری بے چینی بڑی. میں پہنچا ان کے پاس بیٹھا، رات کو صبح میں گیا ہوں، وہ دنیا سے رخصت ہو چکی. یعنی وہ سیکھنا آپ کا چیزوں کا انہوں نے کچھ چیزیں شیئر کرنی تھی اور مجھے ان سے ملنا تھا ان کو دنیا رخصت کرنے سے پہلے. اور وہ بھی ایک عجیب و انہونی بات تھی. آج بھی میں کبھی سوچتا ہوں کہ میں اتنا کوئی خاص انسان تو نہیں ہوں کہ مجھے بلایا گیا اور مجھ سے بات شیئر کی گئی. ان کے پاس تو لوگ تھے جو برسوں سے اپنی زندگیاں ان کے قدموں میں گزار رہے تھے. مگر دیکھو تو سی عجیب و غریب بات ہے. Maybe he has seen, the person I see in my father, the great person جو مجھے ہمیشہ پیمپر کرنے کے لیے ہوتے، تو maybe he must have seen that. And ہر ان سے بچے کے لیے اپنا والد تو سب سے گریٹ ہی ہوتا ہے، but he is an extraordinary person. ہمارے ساتھ اکرم صاحب لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیے خیریت؟ ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. آپ کی دعائیں. جی جی میں ڈاکٹر موجود صاحب سے بات کرنا جی کریں، ادھر ہی ہیں، کریں بات. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فرمائیے بھیا. سر بیسکلی میری جاب کا کافی عرصے سے پرابلم چل رہا تھا اور ایک اچھی جگہ میں امپلائمنٹ چل رہی تھی، وہ ختم ہو گئی. کافی عرصے سے میں مختلف جگہ جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہوں، میرا سکسیس نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. تو اسی سلسلے میں آپ سے گائیڈ لائن چاہیے تھی، کیا کروں، کس طرح کروں. جی ٹیکنیک بتا دوں؟ جی چلیں آپ کو ٹیکنیک بتاتے لائیو ہم لوگ، اور پلیز اس ٹیکنیک کو اپلائی کرنا میں بھی آپ کی زندگی میں میریکل ہو جائے. جی ہمیں یاد ہے کل ایک خاتون کی کال آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتی. جب آپ سوچتے ہیں مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا ہے، مجھے نوکری نہیں مل رہی، تو نوکری نہیں ملتی آپ کو. تو پہلے تو یہ سوچنا بند کر دیں. سب سے بڑی بات، روز رات کو 15-20 منٹ اگر آپ نکال سکے، جب بالکل مکمل سکون ہو، کوئی آپ سے بات کرنے والا، اکیلے تنہا کمرے میں بیٹھے اور بحیثیت مسلمان بسم اللہ پڑھیں، درود پڑھیں، اس کے بعد آنکھیں بند کریں. آنکھیں بند کرنے کے بعد اب 100 سے 1 الٹی گنتی گنے، 199 آہستہ آہستہ، اور اپنے آپ کو ریلیکس کریں. جب آپ ریلیکس ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے اپنے تصور میں اپنے آپ کو ایک دفتر کے اندر کام کرتے ہوئے دیکھنا ہے، اور اس دفتر کا نام وغیرہ سامنے نہ، بس ایک زبردست آفس سے میں کام کر رہا ہوں اور میں بہت خوش ہوں، اور اس خوشی کو واقعی اس وقت اپنے اندر پیدا کرنا ہے، ایز اف اٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ. آپ فیوچر میں نہیں سوچ رہے. عروج اکثر یہ ٹریننگ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ مت سوچنا کہ مجھے ملے گا، بیکاز اینی تھنگ دیٹ یو تھنک ان فیوچر ول آلویز ریمین ان دا فیوچر. اس کو سوچے کہ اس وقت ہو رہا ہے، میں اس دفتر میں بیٹھا ہوں اور آئی ایم سو ہیپی. یہ کرتے کرتے 10 سے 15 منٹ اگر آپ فیلنگ پروڈیوس کر سکے ایز اف یو آر ریئلی ورکنگ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کرام، یہ معجزہ آپ کی زندگی میں ہوگا. بہت جلد آپ کو جاب مل جائے انشاءاللہ. اور کوئی بھی کام اگر آپ نیت آپ کی صحیح ہے، اور اگین وہی والی بات ہے، فیتھ اور فیلنگ ہونی چاہیے، تو آپ کا ضرور وہ پورا ہوگا کام. اور انشاءاللہ اللہ آپ کی نوکری میں آپ کی مدد کرے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے رؤف صاحب کوئٹہ سے. السلام علیکم رؤف صاحب. کیسے ہیں آپ؟ کوئٹہ میں ٹھنڈ ہے بہت زیادہ؟ ہاں ہمارے پاس بھی کوئٹہ کی ہوائیں آنے والی ہیں ویسے. اور بتائیں کیسے؟ جی کہیے. ڈاکٹر صاحب
अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। रऊफ साहब थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज। डॉक्टर साहब मैं आपका प्रोग्राम डॉक्टर साहब हमेशा देखता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका जी हाँ। बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ कुछ साल पहले, आज ख्वाब का तो टॉपिक नहीं है, मैंने एक ख्वाब देखा था 2-3 आदमियों को। जी जी। कोई फिर 1.5 साल बाद मेरा उनसे मुलाकात हुआ। अच्छा। जी हाँ। वेरी गुड। ठीक, और उनको उससे पहले आपने कभी नहीं देखा था? उससे पहले कभी नहीं देखा था। वो उसने मुझे अपने गांव में जो दावत दिया, वहाँ पे जो एक चीज बिल्कुल उसी तरह मैंने देखा फिर बाद में। क्या बात है, क्या बात है, ये भी अनहोनी बात है वैसे। चले, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, थैंक यू। मगर एक चीज तो पता चली ना कि आज इनकी कॉल से एक बात पता चली कि जो चीज मुस्तकबिल में होने वाली है वो कहीं ना कहीं मौजूद होती है, और कभी कभी इंसान को ख्वाब में परवरदिगार अगर फजल कर दे तो वो चीज उसे पता चल जाती है। बिल्कुल ठीक, और ये भी एक मौजज़ा है, अगेन मिरेकल है कि आपको पहले ही चीज पता चल गई और आप वैसे ही आप उस चीज को आपने एक्सपीरियंस भी किया। आई एम सेइंग मिरेकल इन अ वे कि आपके साथ कुछ ऐसी चीज हो गई जो आप नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते अपनी डे टू डे लाइफ में, तो उस लिहाज से बात करें। अगेन मैं चीज को क्लियर कर रही हूँ, नॉट एक्जैक्टली मौजज़ा बट अगेन मिरेकल जो हम नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं। अच्छा जी, अबू एक बात बताएं कि जैसे कि मैं एक चीज, हम लोग उस दिन एक बात कर रहे थे, आपने बताया था एक बच्चा था जो अपनी बहन को तिलावत करके मतलब वो ना वो चीज का, इज इट पॉसिबल? हाँ, इजिप्ट के करीब इजिप्ट में एक शहर है, कैरो से करीब छोटा सा शहर है, वहां एक बच्चा था 11 साल का। उस बच्चे को बहुत छोटी एज से उसने तिलावत के कुरान पाक सीखी थी, उसकी आवाज बहुत अच्छी थी, तो वो तिलावत करता था। तो उसकी वालदा जो थी वो उम्मीद से थी, और आखिरी मंथ में बड़ा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर हम बच्चे को बचा सके तो बहुत बड़ी बात है। इस वक्त तो माँ को और बच्चे को मतलब दोनों को खतरा है, तो बस दुआ करें कि हम किसी तरह माँ को बचा ले या बच्चे को बचा ले, मगर एक ही बचेगा, दूसरा नहीं बचेगा। बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन था। तो जब वो कॉम्प्लिकेशन हाइट पे पहुंचा और आखिर एक वक्त था जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ेगी और बच्चा नहीं बचेगा और माँ को हम बचा ले। तो उस भाई ने, जो 11 साल का लड़का था, उसकी आदत थी कि रात को जब उसकी मां लेटी हुई होती तो वो कमरे में आकर तिलावत कुरान पाक करता और ये कहता कि जो मेरा भाई या बहन दुनिया में आने वाले मैं उसको सुना रहा हूं। ठीक है, उस वक्त उस बच्चे ने आकर वो तिलावत शुरू की कुरान पाक की। थोड़ी देर तिलावत करते रहे, उसके बाद उसकी मां जो है उसको थोड़ी सी फीलिंग डिफरेंट हुई, डॉक्टर्स वापिस आए, दिस इज इमरजेंसी रूम की बात कर रहा हूं मैं, और उसकी मां ने कहा कि मुझे यकीन है कि मेरे बेटे ने जो तिलावत की मुझे फीलिंग हो रही है एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। वो एक मौजिजा हुआ, वो बच्चा सही पैदा हुआ, बच्चा भी सेहतमंद, मां भी सेहतमंद, तिलावत कुरान की। तो इसका मतलब ये, अब ये लड़का ये कहता है जो 11 साल लड़का था, उसने कहा कि वो भाई पैदा हुआ उसने कहा मेरा भाई मेरी मां के पेट में कुरान की तिलावत जो मैं करता था वो सुनता था, ये उसका फेथ था उस बच्चे का। कहते इसीलिए जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो मैंने तिलावत कुरान पाक आकर इसलिए की कि मेरा भाई मेरी माँ के पेट में ये तिलावत सुने कुरान पाक। और ये तिलावत कुरान पाक का आप मौजज़ा ही देखें कि कॉम्प्लिकेशन से निकल आते चीज खत्म हो गई। इसीलिए कहते हैं जब कोई बीमार हो या इवन सही भी हो लेकिन बीमार हो तो बीमार के पास तिलावत कुरान पाक की करना बहुत ज्यादा मुफीद है, लेकिन फेथ के साथ, फेथ भी होना बहुत जरूरी है आपका। आप फेथ करें कि हाँ यार इससे होगा, आपका फेथ होना बहुत जरूरी है। फेथ इंसान के अपने लिए, उससे कोई मतलब उसमें बात नहीं कि आपको उससे उस बच्चे को एक फेथ था कि भाई सुन रहा है, तो अगर कोई खुदा ना खास्ता कोमा में भी और आप उसके लिए करें तो आपको ये फेथ होना चाहिए कि वो शख्स सुन रहा है इसको और वो इसको रिस्पॉन्ड करेगा कभी ना कभी। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉल है, अबीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र जी। कहिए डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, पहले तो आप लोगों के प्रोग्राम की तारीफ करनी है, बहुत प्यारा प्रोग्राम है, जिसमें बहुत मौका मिल रहा है। बहुत शुक्रिया। तो मुझे 2 बातें पूछनी है डॉक्टर साहब। जरूर। रिसेंटली एक टेक्निक बताइए, क्या ये कोई बीमार अपने आप को सेहतमंद देखे और वो अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं इस टेक्निक के जरिए? बिल्कुल, ये तो इसके ऊपर एक मैं आपको मेंशन करता हूँ, हमारे जितने नाजरीन हैं जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, एक DVD आई है डॉक्यूमेंट्री द सीक्रेट के नाम से, द सीक्रेट जी, और वो अगर आप ले ले मार्केट से उसको देखें आप हैरान हो जाएंगी कि ये जो सीक्रेट है इंसान के अंदर क्या बड़ी ताकत है जिसको वो जानता नहीं। तो किसी भी सिचुएशन में हो, देखें दुआ भी इसी तरह होती है, जो दुआ रिक्कत के साथ होती है उसमें इंसान वो फीलिंग अपने अंदर पैदा करता है और परवरदिगार उसकी वो दुआ बहुत जल्द कबूल करता है।
तो किसी भी सिचुएशन में विजुलाइज करें तो वो चीज हो सकती है। डॉक्टर साहब एक बात और पूछनी थी, 2 साल पहले मुझे एक ख्वाब आया था जिसमें मैंने अपनी सारी गलतियां पर्दा स्क्रीन पर देखी जो मैं जिंदगी में कर रही थी, और वो एक्चुअल है भी। ठीक है। तो फिर उसके बाद मुझे दिन में ऐसा दोबारा ख्वाब वही आया और मुझे एक इस्तग़फ़ार की तस्वीर भी नजर आई। ठीक है। तो मैं बहुत खौफज़दा हो गई थी इस ख्वाब से। अब मैं इस्तग़फ़ार करती हूँ, भूल भी जाती हूँ, और मैंने ये सोचा कि अगर मैं ये नहीं करूंगी तो मैं जहन्नुम में जा रही हूँ। तो क्या मेरे इस ख्वाब का क्या मकसद है, मुझे समझ में नहीं आया और मैं इससे बहुत परेशान रहती हूँ। अच्छा देखिए, बात ये कई दफा इंसान के अंदर एहसास जुर्म जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ख्वाब में कभी कभी ऐसी चीजें आती हैं, और उसके बाद बीमारी की सूरत नहीं देखा डॉक्टर साहब। उस वक्त मैं बहुत बीमार थी और बीमारी की सूरत में मैंने ये ख्वाब देखा था। बीमारी में होता ही है कि बीमारी के अंदर इंसान की ब्रेन केमिस्ट्री भी बड़ी चेंज होती है, और उस ब्रेन केमिस्ट्री में जब चेंज होती है तो हिलुसिनेशन भी करता है इंसान, ड्रीम में लूसिड ड्रीमिंग करता है, कुछ ऐसी कैफियत भी इंसान पे तारीफकारी होती है बीमारी में कि जब अल्लाह से बहुत करीब होता है, याद रखिएगा। तो जी एक आप प्रोग्राम और कीजिएगा, नेगेटिव सोचों को पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, इंशाल्लाह हमें जरूर इस तरह कोई प्रोग्राम करेंगे। अगर आपका कोई सजेशन है किसी प्रोग्राम का, थैंक यू सो मच अबीर आपकी कॉल का। बट अगेन सबके लिए अगर आपको ड्रीम इज द मंडे डे, मंडे इज फॉर ड्रीम्स, तो अगर आपका कोई ड्रीम आपको हफ्ते के बीच में याद आता है तो प्लीज हमारे फेसबुक का जो फैन पेज है डॉक्टर मोइज लाउंज का, उधर ज्वाइन करें, जाके उधर अपने ड्रीम्स लिखें, हमें हमसे बात करें, वहां पर हमें मैसेज कर दें। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करें आने वाले प्रोग्राम्स के लिए तो डॉक्यूमेंटेड भी हो जाएगा, हमें फेसबुक पे लिख के भेज दें तो बहुत सारे लोग उस पर कमेंट भी कर सकते हैं, और एक फोरम हम बनाते हैं, डिस्कशन होगा हमारा। तो प्लीज ज्वाइन डॉक्टर मोइज लाउंज का पेज ऑन फेसबुक, उस पर ज्वाइन करें, वहां हम भी होंगे, वील बी इन अ डिस्कशन। आपकी कोई प्रॉब्लम से कोई बात हो तो प्लीज हमसे वहां शेयर करें। आज बहुत जल्द आपके दिमाग को पॉलिश करने के लिए, रोशन करने के लिए कुछ चीजें आपको फिर फेसबुक पे देंगे जो आप सोचें और उसको जी। और हम ये भी करेंगे कि अगेन वही क्विज हमने बताया, सर क्विज हम डॉक्टर मोइज लाउंज के पेज पे करेंगे, जो आप अगर क्विज का जो भी प्रॉपर जवाब देगा तो उसको हम कूपन दे सकते हैं, हम नई नई चीजों उस पे अपलोड करेंगे। तो प्लीज ज्वाइन डॉक्टर मोइज लाउंज का फैन पेज। हमारे साथ हमारे रेगुलर कॉलर, इनकी तो कॉल मिलती है तो मुझे मिरेकल ही लगता है, सच्ची बात है। जो या साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरी बहन कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, आप कैसे हैं? बस आई मोटे, बस उर्ज में तुम्हारी लिए एक बात हूँ, अल्लाह ताला तुम्हें सेहत तंदुरुस्ती तुम्हारी कायम रखे, तुम बाप बेटी में प्यार है। मुझे पता है कि जरा सी इसमें पिन भी चुप जाए ना डॉक्टर को तकलीफ होती है, लेकिन तुम्हारी एक बात बताऊँ उर्ज, मैं आज फील कर रहा था कि तुम इतनी खूबी तुम्हारे अंदर है कि तुम अपने अंदर का दर्द जो है, अपने अंदर की तकलीफ कभी चेहरे पे नहीं लाती, हमेशा मुस्कुराती रहती हो। और मुझे पता होता बात को बहुत तकलीफ भी होती तुम, लेकिन कभी किसी कॉलर को तुमने कभी भी रूदी बात नहीं करी। विराट का मुजाहिर यू नो, और ये तुम्हारे फादर की तरफ से गिफ्ट है तुम्हें। बहुत शुक्रिया यार, इतनी प्यारी प्यारी बातें, बहुत शुक्रिया यार, सीरियसली बहुत शुक्रिया। मैं मुझे भी फोन नहीं करना था, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया ना डॉक्टर साहब, मैं कहता हूँ कि मेरे तो मुझे हिप्नोटाइज कर देते हैं डॉक्टर साहब। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे मेरे साथ प्रोग्राम देखें, लेकिन डॉक्टर साहब आई एम सॉरी कि बच्चे आजकल नहीं देखते अच्छे प्रोग्राम, आई डोंट नो व्हाई। मैंने बहुत कोशिश की, दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनको भी टॉपिक देके आपका प्रोग्राम देखेंगे। बहुत शुक्रिया यार, लेकिन कॉल तो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, लेकिन अगर बच्चे प्रोग्राम नहीं भी देख रहे तो भी कोई बात नहीं, आगे पीछे कभी देख लेंगे। लेकिन इतने प्यारे उनके वालिद हैं और इतना कुछ सीखते हैं आप, और इतना कुछ हमें भी बताते हैं, तो प्लीज अपने बच्चों, आपके बच्चे आपसे बहुत कुछ सीख जाते हैं, ये बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। उरूज या मैंने कई दफा कहा है, मैं बहुत सख्त, इनफैक्ट एक वक्त तुम्हें याद नहीं, शायद तुम उस वक्त नहीं थी यहाँ पर, कहीं और गई हुई थी तुम, तो एक रेकी का लेक्चर हो रहा था, और पता नहीं वो जो कमर में एक मोच सी आ जाती, चिक पड़ जाती, क्या कहते हैं उसको। तो मैं लेक्चर दे रहा हूं पोडियम पे, 2 घंटे का लेक्चर है, और लेक्चर खत्म हो गया। लोगों किसी को पता नहीं चला कि उस 2 घंटे में मेरी बैक में इतना शदीद स्पाज़म आया था कि मेरी बैक जो थी आई कुड नॉट मूव, मेरी बॉडी मूव नहीं हो सकती थी। जब तमाम लोग चले गए तो आपको 2 लोगों ने, मैंने लोगों को 2 वॉलंटियर को इशारा किया, उन्होंने मुझे यहां से पकड़कर उतारा, उसके बाद मैं जब चलाऊं तो मेरी मूवमेंट ठीक हो गई, किसी को पता ना चला। तो ऐसा बात यह है कि जो मैंने किया और अब उसको सिखा रहा हूं, कमिटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपके ऊपर से तूफान गुजर जाए, कुछ भी आपकी जिंदगी में तह नस्त हो जाए, बर्बाद हो जाए, मगर जब आप लोगों के सामने आते हैं ना, वो आपसे उम्मीद लगा के बैठे कि आप उनको सहारा देंगे, उनको उम्मीद दिलाएंगे, उनको मशवरा देंगे, तो आप अपना दुख और गम को अपने अंदर छुपा लें, और ये चेहरे पे जो मुस्कुराहट है दूसरों के लिए। और जो भी आज तो लोग बहुत सारी दुआएं देते हैं और बहुत सारा प्यार देते हैं, तो आपकी दुआ और प्यार की वजह से हम यहाँ पर है ना,
اتنی जो भी जिंदगी गुजार आपकी दुआओं की वजह से गुजारा। हमारे साथ एक और कॉलर है डॉक्टर अनवर जही साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। देखें आज आपका टॉपिक जो है और जिसको फोकस कर रहे हैं वो है मिरेकल। जी बिल्कुल। देखिए मिरेकल जो है वो हर आदमी की जिंदगी में सुबह शाम 24 घंटे